ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤਰ ਸੋ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਏਐਮਜੀਐਮ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ 2020 ਦੇ ਤੇ 2019 ਦੇ ਉਹ ਮੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ 2020 ਜੇਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ if be this such that these three numbers ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦੇ ਚ AP ਚ ਹੈ ठीक है then the minimum value of fx तो अगेन AP ਚ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮਿਡਲ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ that is equal to this by 2 ठीक है 2 the power 1 plus x plus 2 the power ठीक है plus 3 raised power x plus 3 the power minus x by 2 ठीक है सो ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ AP ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੋ fx ਦੀ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਏਐਮਜੀਐਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਏਐਮਜੀਐਮ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਟਸ ਅਪਲਾਈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰੀਏ ਕੱਲਾ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਓ 2 raised power 1 plus x ਤੋਂ ਲਿਖ ਲਿਆ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 into 2 ਦੀ ਪਾਵਰ x 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 into 2 ਦੀ ਪਾਵਰ minus x so by 2 ਦੀ ਪਾਵਰ x ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ 2 ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਲੱਗ ਲਾ ਲਓ 3 ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਲੱਗ ਲਾ ਕੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੀ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 is greater than equal to under root of ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 4 so therefore ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 times 2 ਦੀ ਪਾਵਰ x is greater than equal to ਆ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ 2 time 2 4 ठीक है फिलहाल सिर्फ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤੇ ठीक है सो ये मैं ਇੱਥੇ रिलेशन लिख ला कि 2 into 2 the power x which is basically 2 the power 1 plus x ठीक है and 2 by 2 the power x is greater than equal to 4 ठीक है अच्छा ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦਾ ठीक है रिमाइंड ਕਰਾਦਾ ਬਸ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਠੀਕ ਹੈ now 3 the power x plus 1 by 3 the power x by 2 is greater than equal to again 3 raised power x into आगे कट के 1 आ गया therefore 3 raised power x plus 1 by 3 raised power x is greater than equal to 2 ਆ ਦੂਜੀ ਆ ਗਈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਾਦ ਹੋਲਡ ਕਰੇਗੀ ਨੰਬਰ ਜਦ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ x equal to 0 ਤੇ x equal to 0 पुट करोगे 4 आएगा ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਜਦ x 0 पुट करोगे आंसर 2 आएगा सो ਦੋਨਾਂ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਚ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਦ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੋਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ 2 ਤੇ 1 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਐਡਿੰਗ 1 ਐਂਡ 2 ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਜਾਊਗਾ this 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਵਾਲੀ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ 2 raised power 1 plus x plus 2 raised power 1 minus x plus 3 raised power x plus 3 raised power minus x is greater than equal to 4 plus 2 6 ठीक है बट मैंने मिनिमम कितनी चाहिए this divide by 2 ठीक है so therefore 2 ना डिवाइड करना गया fx आ जाएगा ना आ थोड़ा fx हो गया therefore fx is always greater than equal to 3 ठीक है hence the minimum is 3 ठीक है समझेगा so that was like routine problem and कुछ करने के बाद this was pretty basic problem for the students अच्छा फिर कहता है कि x y ये 19 का सवाल है x y are the positive real numbers ठीक है तो again positive maximum minimum inequality hint लग जाता है AMGM ਤੇ चली ਤੇ m and n are the positive integers maximum value of this अच्छा ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ थोड़ा जा अगर तुम ख्याल ना पहला मैनिपुलेट करो look at this expression x ਦੀ ਪਾਵਰ m ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਲਿਓ अब y ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲਿਓ ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈ तो ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 plus x ਦੀ ਪਾਵਰ 2m डिवाइड बाय x ਦੀ ਪਾਵਰ m मतलब x ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ that makes sense है ना ਪਹਿਲਾਂ x ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ y ਦੀਆਂ ਟਰਮ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ and y ਦੀ ਪਾਵਰ n what is this 1 by
ਇਹਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਲੈ x ਦੀ ਪਾਵਰ m ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2m/m that is x ਦੀ ਪਾਵਰ m plus 1/x ਦੀ ਪਾਵਰ m into ਇੱਦਾਂ ਹੀ y ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ y ਦੀ ਪਾਵਰ n ਠੀਕ ਹੈ that's it ਸੋ ਇਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ is that clear ਸੋ I hope ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਸਰ ਮੈਂ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ AMGM ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਸੋ therefore ਆ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ 1/x ਦੀ ਪਾਵਰ m y ਦੀ ਪਾਵਰ n plus 1/y ਦੀ ਪਾਵਰ n ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਪੁੱਛ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾ ਦੇ that ਉਹ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਸੋ ਨਾਓ x raised per m plus 1/x raised per m is greater than equal to 2 ठीक है क्लियर है बेटे ओके सो also y ਤੇ ਲਾਈਏ y raised per n plus 1/y raised per n is also greater than equal to 2 now multiply होया तो ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ multiply कर दो so therefore multiplying them x raised per m plus 1/x raised per m y raised per n plus 1/y raised per n is greater than equal to 4 but साडा desired result की है बेटे ਇਹਦਾ reciprocal ਹੁਣ you know कि this is a positive number ठीक है x positive है m सारे positive है positive number है ਤੇ ਆਪਾਂ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो साइन च फर्क नहीं पैगा तो की करिए ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ इधर ले जाइए अब 4 ਨੂੰ नीचे ले आइए सो 1/, आ जाएगा ना क्या आएगा 1/4 आ 4 इधर आके is greater than equal to 1/this ठीक है therefore this number is less than equal to 1/4 hence इसकी maximum कितनी होएगी 1/4 ठीक है so therefore its maximum will be 1/4 is that clear चलो अगे चलते हैं अच्छा 19 ਦਾ ਆ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ opinion this was like hard question at that moment to think but trigonometry ਦੇ ਅੰਦਰ again ਕੱਲੇ trigonometry ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ positive number ਹੋਣ ਤੇ AMGM ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ trigonometric equation ਦੀ last videos ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ तो उन्होंने टाइप्स के अंदर एक आप इनू फॉल कराने हैं कि जिवें हुण अल्फा बीटा इक्वेशन एक है और वेरिएबल दो है दैन अगेन वन ऑफ द टेक्निक्स दैट यू मे थिंक इज कि जे नंबर पॉजिटिव है तो AMGM के बारे सोच सकते हैं ठीक है क्योंकि AMGM करते हैं A1 A2 A3 आर द डिफरेंट रियल नंबर्स पॉजिटिव रियल नंबर्स तो नंबर ज़्यादा होण इक्वेशन एक होवे तो और अगर पॉजिटिव भी होण तो AMGM सोचा जा सकता है ओके पहला तो अल्फा बीटा 0 to π/2 च ते पॉजिटिव है ठीक है पावर 4 ते पॉजिटिव है अच्छा हुण AMGM कितों पिक्चर च आएगा फॉर एग्जांपल जिवें आ देखो मैं कहां sin दी पावर 4x cos दी पावर 4 अल्फा सॉरी ठीक है बीटा इत्थे 2 है हुण मान लो मैं इधर AMGM लावां ते राइट साइड ते की आएगा sin दी पावर 4 आ नंबर मल्टीप्लाई होने ना पुत्र अगर मैं 3 नंबर लेना 1 2 3 तो इन्हां नंबरां दी पावर आएगी 1/3 साइन दी पावर 4 है कॉस दी पावर 4 है तो पावर किदां दी आ जाएगी 4/3 टाइप बट राइट साइड ते की पावर 1 है पावर 1 कद होएगी सोच के देखो जे मैं 4 नंबर लवां तो इत्थे भी 4 आ जाए और कट के मेरे साइन भी आ जाएगी तो कॉस भी आ जाएगा पावर 1 आ जाएगी तो 4 नंबर लैने आ रादर दैन 3 नंबर और वो तो नज़र आ रहे कि केड़े अड़ा 2 आ इनू लिख लो 1 1 ठीक है so sin the power 4 alpha plus 1 let us take these four numbers 1 2 3 4 divide by 4 is greater than equal to हाँ जी इन्हां दा प्रोडक्ट पहला sin the power 4 alpha into 4 cos the power 4 beta into 1 the power 1/4 now this sin raised to power 4 alpha 4 times cos raised to power 4 beta plus 2
अच्छा आ कितना है, साइन दी पावर 4 अल्फा दी पावर 1/4 कितना आएगा मॉड साइन अल्फा, बट क्योंकि 0 to 90 च मॉड पॉजिटिव ही है। ठीक है, याद रखो ईवनथ रूट जब आप करते ना अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਡ x ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੱਲਾ ਸਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਈਵਨਥ रूट x4 ਤੇ 4th रूट ਹੋਵੇ ਤੇ 4 ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ठीक है, तो 4 है तो पावर 1/4 है, कट के मॉड साइन अल्फा आएगा, बट क्योंकि अल्फा 0 to 90 है तो साइन पॉजिटिव है तो सेम खुल जाएगा। आ 4 मैं इधर ले जा, सो ये भी आ जाएगा साइन अल्फा, कॉस दी पावर 4 ये भी पॉजिटिव ही आ जाएगा, 4 दी पावर 1/4 कितना होएगा, पहला तो 4 कितना 2 स्क्वायर कितना आ गया अंडर रूट 2, सो आ गया अंडर रूट 2। सो मतलब अरिथमैटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन तो वड्डा है। लुक एट दिस, जो साडी इक्वेशन है वो क्या बराबर है, आई है ना, इतने मतलब इक्वलिटी होल्ड कर रही है, और इक्वलिटी कद होल्ड कर दी है, मतलब सानू नहीं पता लगा कि आ वाला नंबर इस नंबर के या बराबर है या तो बड़ा होएगा। बराबर कद होएगा जब नंबर सारे चार ही नंबर इंडिविजुअली इक्वल होंगे। सो इतने इक्वलिटी होल्ड कराई है, देयरफॉर दिस इक्वेशन विल होल्ड when the numbers are equal. So this will be possible if this sine the power 4 alpha is equal to 1 and 4 cos the power 4 beta is equal to 1 आ deduce किया। ठीक है, मैं फिर कहना कि this is again not the only method, होर भी तरीके हैं करने दे, but because positive numbers या more than one variable है एक equation then we can think in those terms। तो हुन आ लभ लो 0 तो 90 च साइन दी पावर 4 अल्फा 1 मतलब साइन दी पावर साइन अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1 बिकॉज 0 to 90 ते प्लस ही होएगा, तो केड़ा एंगल होएगा 90 डिग्री। और अगेन आ कितना आ गया cos दी पावर 4 बीटा इज 1/4, cos स्क्वायर बीटा इज 1/2 एंड cos बीटा इज अगेन प्लस माइनस 1/2 आना सी, बट 0 to 90 है तो प्लस 1/2 आ जाएगा, बीटा कितना आ गया π/4। सो अल्फा आ गया π/2 ते बीटा आ गया π/4। ठीक है, इन्नी सारी कहानी तो वहाँ कटे। सो हुन राइट आ मैं डिलीट कर दिया। ठीक है, सो लेट्स सी अगे की पूछा गया, समझे गल बेटे। सो पूछा की गया एदी वैल्यू तो कोई गल नहीं, अल्फा कितना π/2, सो cos π/2 प्लस बीटा माइनस cos π/2 माइनस बीटा, cos 90 प्लस थीटा 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव माइनस cos बीटा, cos 90 माइनस बीटा cos बीटा, सॉरी 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 इतने पाप होने लगे सी हाले ना कॉफी हिट नहीं की थी। सो cos 90 प्लस बीटा इज माइनस साइन बीटा, 90 है ना चेंज करेगा, सो cos 90 माइनस बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज साइन बीटा, so that is -2 sin beta, beta कितना π/4 put in there, so -2 by √2 that is minus root। ठीक है, so I guess you got this problem already। कहता मैं relatively बाकी नालों थोड़ा औखा सी, but trigonometric equation the last video I don't know मैं पोस्ट की कि नहीं, ਉਹਦੇ छले मल्टीपल वेरिएबल और ਇਹੋ ਜਿਹੇ सवाल होंगे। ठीक है, चलो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि let us go to ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ। ਇਹ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਪੁੱਤਰ। ਮੇਜਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਜੇਈ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਉਹ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੀ AMGM ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਦੋ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਟੈਲ, ਸੋ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਫਸਟ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ weighted AMGM HM। ठीक है, ये ना सॉर्ट ऑफ मैं एक क्वेश्चन थानू लास्ट च करा चुके हैं, पहले मैं समझादा आउंदा कित्थों है। weighted AMGM and HM आ वेखो इत्थों। अच्छा जिवें हुण मैं कहां कि रिमेंबर दैट क्वेश्चन मैं क्या सी क्या करदा A प्लस A प्लस B प्लस B प्लस B ले लईए है ना। जनरली आपां की लैंदे नंबर अलग अलग होंदे हैं ना A B C D E F या A1 A2 A3। हुण मान लो मैं नंबर सेम ले लिया कुछ ते टोटल कितने नंबर हो गए 5 हो गए। 5 नंबरां दा AM 5 दे GM तो है ना कितना आएगा A इंटू A B इंटू B इंटू B दी पावर 1/5 एवें लाने हैं ना। तो बेसिकली इत्थे बेसिकली A नंबर ते एक ही बट दो बार आया।
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ 2a ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ a ਹੈ, ਆ ਇਹਦਾ weight ਹੈ, ਇਸ ਦਾ weight ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ 3b, b ਦਾ weight 3 ਹੈ, 5 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਜਮਾ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ greater than equal to। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਾਰ ਇੱਥੇ a ਸਕੁਅਰ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ b ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਆਏਗਾ, ਔਰ 5 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਬੇਟੇ 2 ਜਮਾ 3 ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਆਪਾਂ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ a1 a2 a3 ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਡ ਨਾ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a1 plus a2 plus a3 by n। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਾਈਨ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੇਟਡ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ a ਤੇ b ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ, a ਦਾ weight 2 ਹੈ, b ਦਾ weight 3 ਹੈ, ਆ ਫਿਰ weight ਐਡ ਕਰ ਲੈ, ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, 5 ਹੋ ਗਏ ਟੋਟਲ। तो आ हो गया वेटेड अरिथमेटिक मीन, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए ਦਾ weight ਜਿਹੜਾ a ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ b ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਉਹ b ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਰਿਸਟ ਪਾਵਰ 1 ਬਾਈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ weighted GM ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ AMGM ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ a ਦੇ b ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਬਣੇਗਾ, ਨੀਚੇ ਆ weights ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਉੱਪਰ ਵੀ 1 ਬਾਈ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ weighted arithmetic mean in general ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ AM weighted is equal to let's say W1 A1 plus W2 A2 up to WN AN। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, W1 W2 W3 ਕੀ ਹੋ ਗਏ, they are the corresponding weight where WI's मतलब W1 W2 W3, ठीक है, are the corresponding weights and they are the rational numbers, ठीक है, and all the AI's are हाँ जी positive real numbers, ठीक है। नीचे की होएगा sum of the weights, और फिर कहाँ है, नवी चीज़ नहीं है, हैगा उत्थों ही कड्ढिया ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ AMGM ਤੋਂ। so that is weighted arithmetic mean, and GM weighted ਕੀ ਹੋਏਗਾ, A1 ਦੀ ਪਾਵਰ W1, A2 ਦੀ ਪਾਵਰ W2, AN ਦੀ ਪਾਵਰ WN ਦੀ power whole raised per W1 by W1 up to WN, and at the harmonic mean weighted लिख लो, that is equal to हाँ जी W1 plus W2 up to WN divide by हाँ जी W1 by A1 plus W2 by A2 up to WN by AN, ठीक है। अगेन कितों आया पहला तो मैं एग्जांपल देख देती, और इंपॉर्टेंट गल क्योंकि हैगा AMGM ही है। सो इंपॉर्टेंट थिंग कि वेटेड अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेटेड, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन is always greater than equal to weighted harmonic mean, and if they are equal, if arithmetic mean weighted is equal to geometric mean weighted is equal to harmonic mean, कद होएगा, इक्वलिटी का होल्ड करेगी when all the numbers are equal and they're equal to the, मतलब सारे नंबर बराबर है, वो नंबर कोई ना कोई a होएगा, ठीक है। सो आ इक्वालिटी दे, सो अगर लिखा हुआ है ना weighted AM is equal to weighted GM, ਇਹਦਾ मतलब all the numbers are equal and like that, और AM भी ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। is that clear? so और ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਲਾਸਟ, ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਫ a ਸਕੁਆयर ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਆਫ a ਸਕੁਆयर b क्यूब, तो क्वेश्चन तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਾਤਾ ਸੀ। स्टिल चलो फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन में एक क्वेश्चन ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈਏ। सो दिस इज नथिंग न्यू, दिस इज लाइक द ओल्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो लेट मी जस्ट सॉल्व वन प्रॉब्लम सो दैट ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर हो जाए। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ कि आ गिवन है 4a plus 3b, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਿਸ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਾਂਟ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ a ਸਕੁਆयर b क्यूब ਤੇ c4 ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਪੜਿਆ, ਜਦ weighted AMGM ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ a ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਤੇ, ਮਤਲਬ a ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ 2 ਹੋਵੇ, b ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ 3 ਤੇ c ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ 4 ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। बट ਇੱਥੇ ਤੇ a ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ 2 ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ 2 ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, a ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਕਰ ਦੋ, ਬਟ ਆ 4 ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ 2a, मतलब फिर बेसिकली पावर की आएगी 2a ਦੀ पावर 2 आएगी,
बाकी नंबर अगे आ जाएंगे ए स्क्वायर तो आ ही जाएगा। बी का क्यूब चाहिए वो रहन दो इदां ही। सो 3 इंटू बी। सी की पावर कितनी चाहिए 4। इत्थे कितना है 2। अगे चाहिए 4 तो की करिए 2 नाल मल्टीप्लाई तो 2 नाल डिवाइड आ इज इक्वल टू 45। असी कुछ नहीं किया, असी अपने डिजायर्ड रिजल्ट नूं दिमाग च रख के मैनुपुलेशन कर ली। हुण जिहड़े 3 नंबर मैं लैणे हैं ना, आ मेरे हो गया A1 A2 A3। आ उन्हां दे कोरस्पोंडिंग वेट्स, आ अगे आ दूजा इहदा ता तीजे दा। हुण मैं की लावां वेटेड AM लावां। समझ आ रही गल। नंबर मेरे आ हो गए 1 2 3 ते आ हो गए उन्हां दे वेट। तो हुण मैं लावां अरिथमैटिक मीन वेटेड इज ग्रेटर दैन इक्वल टू मैट्रिक मीन वेटेड। हाँ जी, पहला नंबर तो वह वेट, सो 2 इंटू 2A प्लस 3 इंटू B प्लस 4 इंटू C बाय 2 डिवाइड बाय कितना 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, लिखाई बड़ी साफ हो रही है। चलो ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ जी आ नंबर है उसकी पावर 2A दा स्क्वायर। ठीक है, आ नंबर उसकी पावर B दा क्यूब C बाय 2 दी पावर कितनी 4 दी पावर 1 बटा, हाँ जी 4 ते 2 6 ते 3 9। इन्नी गल समझानी चाहिए आ। ठीक है, क्यों किया इदां दा, पहला सज्जे पासे रिजल्ट वेख्या उहदे कोरस्पोंडिंग मोल्ड कर लिया। हुण आ जिहड़ी वैल्यू ये तो 45 है, दिस इज 45। सो 45 डिवाइड बाय, ठीक है 9 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू, अच्छा अंदरों हम सॉल्व करिए 2 का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर बी क्यूब सी दी पावर 4 बाय 2 दी पावर 4 कितना होएगा 16 दी पावर 1 बाय 9। तो आ कट जूगा, आ गया 4 दोनों पासे। ठीक है, समझेगा। सो दिस इज 5 दोनों पासे रेस टू पावर 9 कर दो सो दैट आ ऊपर उठ जाए। सो कितना आ गया 5 दी पावर 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी 4 बाय 4। आ 4 भी तो होना ना पुत्र, ए 4 इधर ले जाओ 4 इंटू आ थोड़ा आंसर आ गया। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ नंबर है ना ए स्क्वायर बी क्यूब सी 4 दैट इज लैस दैन और इक्वल टू वट 5 दी पावर 9 इंटू 4। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ मैक्सिमम कितनी होएगी 4 टाइम्स 5 दी पावर 9। ये मैक्सिमम आ गई। और इक्वलिटी कद होल्ड करेगी अगर मैंने पूछा जाए, एनी गल समझ आ गई बेटे। सो ग्रेटेस्ट पूछी सी आंसर साडा आ गया। होल्ड कद करेगी वैन ऑल दी नंबर्स आर इक्वल। अगर मैंने पूछा जाए ना कद होल्ड करेगी किस मोमेंट ते, सो कद होल्ड करेगी वैन नंबर्स नंबर्स किहड़े सी आ वाले 1 आ दूजा ते तीजा वैन 2A इक्वल टू B इक्वल टू C बाय 2। समझाई गल। और हुण की हुंदा जद इहदा इक्वलिटी हुंदी है तेनू कुछ भी मान लो लैम्डा, सो देयरफॉर A इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 B इज इक्वल टू लैम्डा C इज इक्वल टू 2 लैम्डा। हुण मैं की करने मेरा आंसर आ चुका। हुण मैं पूछा भी नंबर लभो जी कद कद होएगी। ठीक है, सो वो मैं लभन की कोशिश कर रहा की ए बी सी पुट करिए कि साडी मैक्सिमम आवे। इत्थों कितना आ गया, इत्थे ए ते बी ते सी दी वैल्यू इत्थे पुट कर दो ए बी सी दी, तुहाडे कोल लैम्डा आ जाएगा। सो 4 इंटू लैम्डा बाय 2 प्लस 3 लैम्डा प्लस हाँ जी 2C 4 लैम्डा इक्वल टू 45। सो इत्थों तुहाडे को क्लीयरली लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू इत्थे रखो, वो ए बी सी आ जाएंगे ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ भी सैटिस्फाई करते हैं। ठीक है, बड़े सारे रियल नंबर होंगे ना पॉजिटिव, ਇਹਨੂੰ पुट करके 45 आएगा तो वो ए बी सी आ जाएंगे, ਜਿਹੜਾ ਆਹ वाला नंबर ਤੁਹਾਡਾ मैक्सिमम होएगा। ठीक है, सो ए एम जी एम बेसिकली एक चीज़ बड़ी सब तो कॉमन मैक्सिमम ਲੱਭਣੀ ਹੋਵੇ मिनिमम ਲੱਭਣੀ ਹੋਵੇ वेरीएबल ज़्यादा होਣ ए बी सी यू नो अल्फा बीटा गामा एंड सो ऑन, तो ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ हिंट लग जाता है कि यस वी गॉट गो बाय। ठीक है, सो दिस इज वेटेड AMGM। ठीक है, नेक्स्ट टाइप एक लिख लो और। सो दिस वाज टाइप 1 ऑफ एडिशनल इनक्वालिटीज। ठीक है, एंड वेटेड AMGM क्योंकि AMGM तो ही ड्राइव होया तो कोई बहुता नवी चीज़ नहीं सी एक्सेप्ट दिस प्रॉब्लम। उसके बाद लिख लो सेकंड कॉचीज इनक्वालिटीज। ठीक है, कॉचीज इनक्वालिटीज। ठीक है, पूरा इन्हू कॉची श्वार्ज कहते, कॉची श्वार्ज इनक्वालिटी। दो बंदे सी जिन्होंने पंगे लए थे इनक्वालिटी आई। श्वार्ज के मैंने स्पैलिंग नहीं आते। ठीक है, तुम चैक कर लो। वो की कहती है, कहता A1 A2 A3।
ठीक है, एक सैट ऑफ रियल नंबर्स है इदां B1 B2 B3, ये दूजा सैट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। फिर ऑल दी AIs एंड BIs आर रियल नंबर। अच्छा, रिजल्ट के बेस पे ना मेन्स च भी क्वेश्चन आ चुके हैं, मतलब इंपॉर्टेंट है, वैसे भी कम आउंदी का। वो कहता अगर ए है देन रिजल्ट लिख लो सीधा, देन सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट सेट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर AN स्क्वायर इनटू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सेकंड सेट, ठीक है। इतने माइंड यू इतने रियल नंबर है, मैं पॉजिटिव नहीं किया, रियल नंबर्स दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा, होता है कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन, मान लो A1 B1, ठीक है, प्लस दूजे ना A2 B2, ठीक है, एंड अप टू एंड लास्ट दा लास्ट ना। बाकी नंबर आप फ्लिप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बट पहले मैं समझाना फिर मैं इतने आना, मतलब पहले सैट दा सम ऑफ स्क्वायर, दूजे सैट दा सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एंड फिर प्रोडक्ट करके, क्योंकि ये भी n नंबर है, ये भी n नंबर है, सो प्रोडक्ट एक एक दा करके दा नाल ओदा स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड कॉचीज इनइक्वालिटी, ठीक है। सो मतलब अगर मैं समझ गल बेटे, कहता आ ਜਿਹੜਾ नंबर है हमेशा ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆ स्क्वायर उपर या ਵੱਡਾ होएगा बराबर होएगा, बराबर कौन होएगा वो लिख लो, इक्वालिटी holds when the ratio of corresponding numbers is same. Now what does the corresponding mean? ਇੱਥੇ A1 ਨਾਲ B1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ, मतलब ਆ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ, ठीक है, अब B1 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ, मतलब A1 by B1 is equal to ਜਿਹੜੇ corresponding, मतलब ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏ A2 by B2 is equal to A3 by B3 up to AN by BN। तो अगर आ रेशियो तुसी इन्हां दी corresponding बराबर होएगी फिर इक्वल आएगा, अगर रेशियो बराबर नहीं है फिर आ वाली साइड हमेशा राइट साइड तो वड्डी आएगी। अच्छा, हुण मैं इहनूं ईजी करके दसदा, ये तो थोड़ा डेंजरस लगता है, यू नो सम ऑफ स्क्वायर्स, तो सीधा तो याद होवे। एक पर्टिकुलर एग्जांपल समझो जिहड़े क्वेश्चन भी आउंदी है। हुण मान लो कि इदां लिखिया होवे, लाइक मैं कहना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट सुन लियो पहला गल, मान लो A1 A2 इनू ले लिया A, इनू B, इत्थे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई, ठीक है, A इहदे नाल A इंटू 1 प्लस 2 इंटू B, मतलब एक सिंपलेस्ट तरीके नाल लाई। सो दिस इज लाइक मैं की कीता, A1 नू A ले लिया, A2 नू B ले लिया, इधर B1 नू 1 ले लिया, B2 नू 2 ले लिया, इधर A1 B1 इनू मल्टीप्लाई करता, ठीक है, A2 B2 B नू 2 ना ऊपर स्क्वायर, अब बिल्कुल ठीक है। सो आ एक रिजल्ट आ गया बेसिकली। तो अगर तुसी हिंट देखो क्वेश्चन आज सज्जे पासे अगर एक सैट फिक्स नंबर है जिवें 1 2 3 4 और इत्थे वेरिएबल है ABC, ते एक ते होएगा सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, अगर एक वेरिएबल्स ले ना ABCD ते एक ते होएगा सम ऑफ स्क्वायर्स, और अगर एक सैट अपन नंबरां दा लिया ते राइट हैंड साइड ते की होएगा, एक लीनियर आ जाएगी, यू नो, बिकॉज इनू A नू 1 ना मल्टीप्लाई करांगे B नू 2 ना, ठीक है, ते आ एक लीनियर आ जाएगी। तो इफ वन सेट इज ऑफ कांस्टेंट एंड अदर सेट इज लाइक वेरिएबल ABCD या XYZ, तो इत्थे सम ऑफ स्क्वायर्स बनदा पिया, एक लीनियर बनदी पई है उन्हां वेरिएबल्स। तो ये इन्ना याद रखियो, क्वेश्चन च कम आऊगा। सो हुण क्वेश्चन के हिसाब नाल चलीए, अगर मैनू आ लीनियर की वैल्यू देती, मतलब क्वेश्चन मैं शुरू एवं करा कि इफ A प्लस 2B इज 3, ठीक है, इस क्वेश्चन एवं स्टार्ट करा कि इफ A प्लस 2B इज इक्वल टू 3 फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जस्ट इमेजिन दिस प्रॉब्लम। तो मैं की करा, हुण आ मैं लिखा होया ते A प्लस 2B की वैल्यू कितनी है 3, आ 3 हो गया। तो देयरफॉर रिजल्ट की कहता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू, हाँ जी, 4 ते 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू आ 3 3 दा स्क्वायर 9। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दा की आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगी, फिर दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/5, 9/5 तो बड़ा है, तो इसका मतलब इसकी घट्टो घट वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/5। कद आएगी, वैन हाँ जी A/1
इज इक्वल टू b by 2 इस मोमेंट ते। इज दैट क्लियर? अच्छा अगर क्वेश्चन च मैं उल्टा के दे दा, सो वट मैं तुहानूं दोनों तरह सवाल दे रहा, सो जे ते आ गिवन होवे ते आ वेरीएबल ही होएगा ते एदी मिनिमम आ जाएगी। हुण मैं रिवर्स करदा, हुण मैं कहदा आ गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है। हुण इसे क्वेश्चन में कहां इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेट्स से 4 then find the maximum value of a plus 2b। तो हुण आ 4 आ गया इनटू हाँ जी आ कितना आ गया 5 इज लेस देन इक्वल टू a plus 2b द होल स्क्वायर। हुण a plus 2b वालों लेस देन इक्वल टू होते मतलब a plus 2b दी मैक्स आ जाएगी। तो कहंदा भाव या ते सम ऑफ स्क्वायर दी मिनिमम पुछ सकदा और या लीनियर दी मैक्सिमम पुछ सकदा। जे आ गिवन होएगा ते एदी पुछ लेगा, आ वाला गिवन होएगा एदी पुछ लेगा। मैं एक एग्जांपल से समझाता है, बाकी कुछ और एग्जांपल्स लेके मैं इन्हू होर क्लियर कर दिंदा। ठीक है, समझ आई गल बेटे? सो दैट वी विल बी डूइंग जद ਅਸੀਂ क्वेश्चन करते हैं हुण ते पर आ तुहानूं मैं ਇਹਦਾ मतलब दसदा हिंट है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वेरीएबल्स ते एक लीनियर होएगी क्योंकि एक सैट अगर कांस्टेंट दा एक सैट वेरीएबल दा ते इधर लीनियर बन जाएगी। अच्छा एस केस इनइक्वालिटी कद होल्ड करेगी व्हेन a by 1 इक्वल टू b by 2। ठीक है, मतलब a ਦੇ ਨਾਲ 1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ b ਦੇ ਨਾਲ 2। ਅੱਛਾ ਕਈ ਵਾਰ क्यूरियोसिटी ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ मतलब मैं जे a ਨਾਲ 2 ਲੈ ਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰ ਆਈ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਐਜ਼ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਾਂ ਕਿ ਹੁਣ a ਦੇ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 2 ਲੈ ਲਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ 2a प्लस 1b ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही आ गई। पर ਇਹਦੇ 'ਚ मसला की पै जाएगा इक्वलिटी अलग अलग पॉइंट ते होल्ड करेगी। ਹੁਣ a ਨਾਲ 2 मल्टीप्लाई होया तो रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म तो ਇਹ 'ਚ आएगी इक्वलिटी कद होल्ड करेगी व्हेन a by 2 इज इक्वल टू b by 1। ठीक है, ਇਹਦੇ 'ਚ अलग पॉइंट ते होल्ड करेगी, ਇਹ 'ਚ अलग ते होल्ड करेगी। रिलेशन आ भी ट्रू है, रिलेशन आ भी ट्रू है। ठीक है, समझे गल ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ a1 ਨੂੰ b2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਬਟ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਫਿਰ ਆਏਗੀ a1 by b2 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਮਝਾਇਆ। Is that clear? So this is called Cauchy inequality ਤੇ ਇਹਦੇ question let us try to solve। question ਆਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲ ਕਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ question ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ if x square plus y square is 2 a square plus b square is 8 maximum value of ax plus by। ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ x square plus y square into a square plus b square by Cauchy's is greater than equal to ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਨਸਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ax ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ a ਨੂੰ max ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਣਾਵਾ ax plus ਹਾਂਜੀ by ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਾਈ Cauchy's। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ a b ਸੌਰੀ x b ਤੇ ay ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤਾਂ a ਨੂੰ x ਨਾ ਤੇ b ਨੂੰ y ਨਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਾਈ Cauchy's। ਹੁਣ ਆ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 2 into 8 is less than equal to ax plus by ਦਾ होल स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर इत्थों तुहाडे को आ जाऊगी ax plus by दी वैल्यू आ गई कि वध कितनी होएगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? जब चलो स्क्वायर रूट ले लो तो कितना आ गया 4 ax plus by। ठीक है, इज दैट क्लियर? सो तुहाडे को आ गया कि ax plus by जिहड़ा है वध कितना जाएगा 4 और इक्वलिटी कद होल्ड करेगी व्हेन द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग सो a by x इज इक्वल टू b by y। ठीक है, इस मोमेंट ते थोड़ी इक्वलिटी होल्ड करेगी। गल खत्म। ठीक है, मैं पहला भी जिक्र कर चुकिया कि इनू उन्ना की समझना है कि जिन्ना रिजल्ट पता होवे लाना किदा। ठीक है, ओके लेट्स सी। हुण लीनियर गिवन किहदी मैक्सिमम पुछदा सॉरी मिनिमम पुछदा x square plus y square plus z square। so again Cauchy's की कहता है x square plus y square plus z square into इत्थों भी sum of square होएगा वेखते हैं किहड़ा is greater than equal to x plus 2y plus 3z। ठीक है, क्योंकि आ भी यूज करना x ना की मल्टीप्लाई होया 1 इत्थे 1 स्क्वायर होना चाहिए, y ना 2 ते 2 स्क्वायर होना चाहिए, z ना 3 ते 3 स्क्वायर होना चाहिए। समझे गल खत्म। सो इस x square plus y square plus z square into this is greater than equal to this और एदी वैल्यू सानू पता है 14। सो आ नंबर भी पता है तो x square plus y square plus z square। सो कितना आ गया 9 10 14
is greater than equal to 14 the square कटेगा, so therefore x square plus y square plus z square is greater than equal to 14. चलो मतलब मिनिमम कितनी हो जाएगी 14, कद होएगी when the ratio of the corresponding term x by 1 equal to y by 2 equal to z by 3 equal to lambda. ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ x by z ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ lambda, y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 lambda and z ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 lambda, और आ x y z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ lambda ਆ ਜਾਊਗਾ, lambda ਆ ਗਿਆ ਤੇ x y z ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ x y z ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ मिनिमम है. ठीक है, आई होप चीज़ां समझ आ रही हैं. ठीक है, तो ओके आ क्वेश्चन आया सी जेई जिहदे करके चेचा मैं लिया. ठीक है, आ क्वेश्चन देखते हैं अगे ना, पिछला सवाल ही है. याद है कि नहीं, एक AMGM HM च मैं क्वेश्चन कराया सी ਇਹੋ ਜਿਹਾ परफेक्ट स्क्वायर जे दिते ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ कि द नंबर्स आर इन व्हाट AP GP HP. तो एक तरीका मैं दसिया सी कि स्क्वायर खोलोगे तो यू विल सी कि ਤੁਹਾਡਾ इदा बन जाएगा सम ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 0 बन जाएगा. सो पहला भी 0, दूजा भी 0, तीजा भी, उतों तुसीं चैक कर सकते हो AP GP HP. सो ਇਹੋ ਜਿਹਾ क्वेश्चन आया ਸੀਗਾ इदा ਦਾ एग्जैक्टली, कहना जी नंबर किहदे च है. ठीक है, इफ दिस रिलेशन सैटिस्फाइज दैन x y z आर इन व्हाट. इफ यू लुक क्लोजली, सो अगे तो हुण दिमाग च रखो कि सम ऑफ स्क्वायर होवे, इधर लीनियर स्क्वायर हो गए तो कॉचीज याद रखो. तो इत्थे कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. सज्जे पासे कितना है अगर कॉचीज लाइए, एक्स दे अगे की है 1, वाई दे अगे 2, जेड दे अगे 3. इत्थे की चाहिए सानू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 14 ते पे है. तो इनू इदा लिख लिया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. समझ आ रही गल? एंड वी नो इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस. ठीक है, बट साडे केस की दिता उन्हें इक्वल टू, इक्वलिटी कद होल्ड कर दी है. ठीक है, इक्वलिटी कद होल्ड कर दी है व्हेन द नंबर्स रेशियो इज सेम करस्पॉन्डिंग. सो x by 1 बिकॉज इक्वलिटी देता पुत्र सानू, देयरफॉर x by 1 इक्वल टू y by 2 इक्वल टू z by 3 इज इक्वल टू व्हाट lambda. So therefore x is equal to lambda, y equal to 2 lambda and z equal to 3 lambda. हाँ जी दसो जरा किच है x y z ये पीछ बिल्कुल डिफरेंस सेम है 2 lambda minus lambda lambda 3 lambda minus 2 lambda lambda. Therefore the numbers x y z satisfying are in AP. So अगे तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पासे समर स्क्वायर नंबर का समर स्क्वायर लीनियर का स्क्वायर, तो उतों तुहानू स्क्वायर खोल के परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बनाने की लोड़ नहीं है. कॉचीज हेल्प्स यू अलॉट. ठीक है, सो कॉची भाजी ने जो काम इत्थे कीता ना इत्थे काम आया असल च. इज दैट क्लियर? अच्छा, इस क्वेश्चन नू ना वो इदा भी पूछ सकता सी, इदा ना दे के इदा कि इफ दिस इज दिस देन हुण बाय कॉचीज वी नो दैट दिस नंबर इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू. आ वाली साइड जिहड़ी है या तो इतों वड्डी होएगी या बराबर होएगी. एक ही कहता है आ वाली साइड या छोटी है तो बराबर है, आ साइड तो छोटी तो हो ही नहीं सकती बिकॉज कॉची कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा. कॉची कहता है कि आ साइड तो पक्का वड्डी होएगी या बराबर होएगी. तो मतलब छोटी तो पॉसिबिलिटी तो बेस्ट केस सिनारियो की है भी बराबर ही होएगी. हाँ, छोटी का मतलब ही नहीं आ साइड छोटी हो जाए, और बराबर कद होएगी तो हुणे दस्सिया. सो नंबर्स आर इन AP. समझ आई गल बेटे? इज दैट क्लियर? सो ऐदा ही दूजे ते आ जाओ. कहना जी आ दिता है अगेन चेक करो नंबर कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. एक्स दे अगे 1, वाई दे अगे 1 by 2, जेड दे अगे 1 by 3. तो इत्थे की एक्सपैक्ट करते हैं आप 1 स्क्वायर 1 by 2 स्क्वायर एंड 1 by 3 स्क्वायर. आ चाहिए जे आ होवे इनू सॉल्व करो कितना आ गया. दिस इज 36, दिस इज 36 प्लस 9 प्लस 4 40 49 by 36. दिस इज ऑलरेडी देयर. सो इनू असीं इदां लिख लिया. ठीक है, एंड वी नो बाय कॉचीज दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू x by 1 plus y by 2 plus z by 3 the whole square. हाँ समझा रही गल? बट वो इक्वल टू कह रहे हैं तो इक्वलिटी का होल्ड कर दी व्हेन द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स इज सेम. सो रेशियो मतलब x by 1 करस्पॉन्डिंग मतलब x एना 1 ना मल्टीप्लाई से x by 1 इक्वल टू y by हाँ जी 1 by 2 इक्वल टू z by 1 by 3 इक्वल टू लैम्डा ले लिया. So x equal to lambda, y equal to lambda by 2, z equal to lambda by 3, and we can see the reciprocals.
1 बाय एक्स के बराबर आ गया, ठीक है, 1 या 1 बाय लैम्डा, ठीक है, 1 बाय वाई कितना आ गया 2 बाय लैम्डा, एंड 1 बाय जेड कितना आ गया 3 बाय लैम्डा। नाउ डिफरेंस सेम है, डिफरेंस कितना है 1 बाय लैम्डा 1 बाय लैम्डा। सो इन्हां दे रेसिप्रोकल दी डिफरेंस सेम है, ਇਹਦਾ मतलब आ रेसिप्रोकल है आ नंबर ए पी च है ते हैंस ਉਹਦਾ रेसिप्रोकल एच पी च आ जाएगा। सो दिस विल बी इन एच पी। इज दैट क्लियर पुत्र? सो दिस इज इट, ठीक है। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। सो आ याद रखियो, हाँ जी, की एक बार फिर पढ़ लीजिए की याद रखना है, sum of the squares of the one set of real numbers into sum of the squares of other set of real numbers is greater than equal to corresponding product the square। और डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन में तुहानू दसते। लास्ट टाइप लिख लो टाइप 3, उन्हें कहने आपां अरिथमैटिक मीन ऑफ mth पावर। अच्छा पहला मैं समझा देना, ले लो कि लेट्स से a1 a2 an are positive numbers, ठीक है, and m is any real number। let me consider a quantity alpha। वो की है कि इन्हां नंबरां दी ना पावर m कर दो, ठीक है, a2 दी पावर m, a3 दी पावर m एंड an दी पावर m। नंबरां दी पावर m करती, ठीक है, और इन्हां नंबरां दा हुण मैं अरिथमैटिक मीन ले ला, इहनूं असीं कहने आ अरिथमैटिक मीन ऑफ, ठीक है, mth पावर। मतलब नंबरां दी पहला पावर रेज करती, ठीक है, और फिर वो नवे नंबर बन गए, फिर उन्हां नंबरां दा अरिथमैटिक मीन ले लिया। बीटा एक क्वांटिटी कंसिडर करो कि नंबरां नूं कुछ नहीं किया, ठीक है, उन्हां दा ले लिया अरिथमैटिक मीन, ठीक है, और ਉਹਦੀ पावर ਉਹ m रेज करती, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਬੀਟਾ ਚ ਕੀ ਹੈ पूरे अरिथमैटिक मीन की पावर रेज करती, ठीक है। अच्छा हुण पॉसिबल नोट रिजल्ट ले लो, आई एम गोइंग टू टेल यू डायरैक्ट रिजल्ट बिकॉज ये एडिशनली करा रहे हैं थोनों, ठीक है। सो रिजल्ट है पहला केस ले लो कि कहते अगर तेरा नंबर m है, असी की किया सी m एनी रियल नंबर है, तो अगर ते m आ याद रखो 0 ते 1, अगर ते m 0 और 1 दे विच लाई करदा है, ठीक है, अगर ते m 0 और 1 दे विच लाई करदा है, हाफ है 1/3 है, तो जिहड़ा अल्फा आ आह वाला अरिथमैटिक मीन ऑफ mth पावर इज लैस दैन इक्वल टू बीटा, ठीक है। फिर आह वाला am एस am तो छोटा होएगा और इक्वल टू कद होएगा व्हेन ऑल दी नंबर्स आर इक्वल, ठीक है। इज क्लियर? सो मतलब अगर मैं एग्जांपल लेके समझावां कि जिवें मैं ए ते बी दो नंबर ले लें, 0 और 1 दे विच कोई भी नंबर ले लो हाफ, तो इन्हां दा mth पावर अरिथमैटिक मीन ए दी पावर 1/2 प्लस आ हो गया आ वाला, n हो गया 2, m हो गया हाफ, इज लेस देन इक्वल टू a प्लस b/2 दी पावर 1/2। याद रखो जिन्नी इंडिविजुअल नंबर दी पावर सीगी वही फिर इत्थे आई, सो इत्थे पावर हाफ है तो इत्थे हाफ, सो बिल्कुल ट्रू है। इज इट क्लियर? सो अगर m 0 और 1 दे विच है दैन जिहड़ा mth पावर वाला अरिथमैटिक मीन है वो छोटा होएगा, इक्वल टू कद होएगा जद नंबर आपस बराबर है, ए और बी बराबर रखो तुसी देखोगे इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी, ठीक है। एंड सेकंड इफ m इज एनी अदर रियल नंबर, मतलब ए तो इलावा हले 0 ते 1 ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਦੱਸੂਗਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਆ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ तो ठीक है, फिर अल्फा ਵੱਡਾ है। इफ m इज एनी अदर रियल नंबर 0 भी कटता 1 भी ते आ वाले भी, दैन अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा, ठीक है। तो फिर एनू आ ਇਹਦੀ वैल्यू ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, मतलब जिवें कोई भी नंबर ले लो 2 ले लो है ना, या नेगेटिव कोई ले लीए, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा ना लवा तो कन्फ्यूज हो जाना, ठीक है। सो देखो लेट्स से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2, ठीक है,
इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाँ जी a प्लस बी बाय 2 द होल स्क्वायर। सो मैं दस रहा कि सीधा रिजल्ट कोई पूछ ले ये नजर आ जाता ना कि पावर स्क्वायर हो क्यूब हो सकता a क्यूब प्लस b क्यूब बाय 2 इज a प्लस b बाय 2 द क्यूब। सो जो आ नंबर है जिन्नी आ पावर रेज की हुई है इतने मैं कहा a दी पावर 10 प्लस b दी पावर 10 बाय 2 इन्हों का अर्थमैटिक मीन आ तो दो ही रहेगा ना नंबर तो दो है इज a प्लस b बाय 2 दी पावर 10। ठीक है सो इदा अगर नंबर कद 0 और 1 इंक्लूडिंग बार बार है थर्ड केस की रहेगा 0 और 1 वो देख लो कि अगर m दी वैल्यू 0 होवे या 1 होवे तो की होएगा समथिंग रेस्ट पर 0 सारे 1 1 1 अभी 1 आ जाएगा अभी 1 अभी n बाय n 1 आ जाएगा। सो अभी बीटा भी सेम आ जाएगा तो उस वेले की होएगा अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा। सो अगर m दी वैल्यू या 0 हो जाए पुट करके देखो ना 0 समथिंग रेस्ट पर 0 1 1 1 आ जाएगा n बाय n 1 अभी n बाय n 1 तो बराबर आ जाएगा और अदरवाइज बराबर का होता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा व्हेन ऑल दी नंबर्स आर इक्वल। सो अगर मैं जनरली गल करा कि अल्फा बीटा के बराबर है तो मतलब नंबर या तो m 0 होगा या तो m 1 होगा या ऑल दी नंबर्स आर इक्वल। ठीक है हुण आपां एवें करदे हां इच क्वेश्चन अज किहो जिहा नजर आंदा इच बड़ा सीधा सीधा लाइक a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इत्थे a प्लस b प्लस c दा स्क्वायर तो जिहड़ी पावर इधर है ਉਹੀ ਇੱਧਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ m ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤੇ 0 ਔਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਆ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਗਰ m ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ 네ਗੇਟਿਵ ਹੈ ਫਿਰ ਆ ਅਲਫਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਡੂ ਸਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਟੂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਦ ਥਿੰਗਸ। ठीक है वो कहता जी a प्लस बी प्लस सी 1 है तो ठीक है और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1 है मिनिमम। अच्छा पावर देखो इतने आ की है a दी पावर -2 b दी पावर -2 तो c दी पावर -2 यदि मिनिमम चाहिए मिनिमम मतलब ग्रेटर दैन इक्वल टू समथिंग तो यदा मतलब खब्बे पासे लईए। सो a दी पावर -2 b दी पावर -2 c दी पावर -2 तीन नंबर ले ले। ठीक है उन्हों का अर्थमैटिक मीन mth पावर वाला पावर कि लईए -2। ठीक है तो सज्जे पासे की आएगा a प्लस बी प्लस सी अर्थमैटिक मीन दी पावर -2 आ गल समझ आनी चाहिए। फिर जो नंबर ले आया m वो 0 और 1 के बाहर है तो मतलब आ वाला mth पावर वाला वड्डा होएगा। ठीक है और इक्वलिटी कद होल्ड करेगी व्हेन द नंबर्स आर इक्वल व्हेन दिस लाइक a इक्वल टू b इक्वल टू c देयरफॉर इत्थों की आ गया समझ आ रही गल बेटे। सो 1 बाय a स्क्वायर प्लस 1 बाय b स्क्वायर बड़े सारे हिंट होंगे देखो एचो सानू a प्लस b प्लस c पता है इतों भी लग जाता पता कि यार a प्लस b प्लस c पता है तो नंबर a b c ले लीए बाकी जो बचे वो पावर बन जाए। सो ए दी वैल्यू 1 है सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय 3 दी पावर -2 आ ते आ नाल 3 आ भी पैसे। ठीक है 1 बाय 3 सो कितना आ गया 1 बाय a स्क्वायर प्लस 1 बाय c स्क्वायर हाँ जी कितना आएगा पुत्र ऊपर आ जाएगा दिस इज 3 द नेगेटिव 9 इंटू 3 27 so that eventually comes out to be now you have to see के equality का होल्ड कर दिया equality holds when a equal to b equal to c right। so let's plug in आ वाली वैल्यू इत्थे पुट कर दो। so 3a equal to 1 a equal to 1 by 3 b equal to 1 by 3 and c equal to 1 by 3। ठीक है इत्थे पुट करोगे तो आंसर 27 आ जाएगा। सो ये जे पूछा होंदा केस ए बी सी ते तो व्हेन ईच ऑफ देम आर 1 by 3। ठीक है बेटे हाँ जी आ जाओ हम तुसी भी ट्राई करी जाओ अगेन आ पहला ता फड़ा हिंट। सो x प्लस वाई प्लस जेड बाय 3 ठीक है हाँ जी एक्स क्यूब ठीक है इसका मतलब m हो गया 3 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बाय 3 दी पावर 3 समझे गल क्योंकि आ भी गिवन है आ नंबर हो गए। ठीक है तो बाकी क्यूब चाहिए तो पावर ले लिया 3 3 3 जी पावर इतने हुई है। सो एदी वैल्यू कितनी है 1 सो कितना आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बाय 3 हाँ जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाँ जी 1 बाय 3 27। ठीक है और आ 3 इधर आ 9 आ गया therefore this is greater than equal to 1 by 9 और again 1 by 9 कब होएगा when the numbers are equal when x equal to y equal to z
ठीक है, इत्थे पुट कर सकते हो तो इंडिविजुअली किन्ने आ जाएंगे 1/3, तो इत्थे पुट करो थोड़ा 1/9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इत्थों तो एक इनइक्वालिटी आ गई। ठीक है, 1/9। हाँ जी, फिर 6 वाली चाहिए तो की करिए, फिर दूजी बार ला दो, है ना, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो x ਦੀ ਪਾਵਰ 6 plus y ਦੀ ਪਾਵਰ 6 plus z ਦੀ ਪਾਵਰ 6/3, ਨੰਬਰ 3 ਹੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, 6 ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇੱਥੇ, ਨੰਬਰ 3 is greater than equal to x plus y plus z by 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 6। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ 6 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 6 ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ 0 1 ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੀ ਆਏਗਾ, this will be like x raised to power 6 plus y raised to power 6, this is 1, so 3/3 the power 6, 1/3 raised to power 5। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਆ ਗਈ h ਵੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਦ ਹੋਲਡ ਕਰੇਗੀ when x equal to y equal to z, ਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1 and 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ x square plus y square plus z square, ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ x square y square z square ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ by 3, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ x square ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੀਸਟ ਕਿਹਦੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ x ਦੀ ਪਾਵਰ -2, y ਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਤੇ z ਦੀ ਪਾਵਰ -2। ਨੰਬਰ x square ਹੈ ਤੇ x square ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, x square ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ -1, y square ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ -1, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ, z square ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ -1। ਸੋ देयरफॉर ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ मतलब आ जी इनफॉर्मेशन गिवन होंगी उन्होंने ख्याल ना पढ़ना, नंबर तो आया ना साढ़े, ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਵੇਖਣੀ। ਸੋ x square ਦੀ ਪਾਵਰ -1, y square ਦੀ ਪਾਵਰ -1 ਤੇ z square ਦੀ ਪਾਵਰ -1/3। ठीक है, पावर कितनी रेज की है, -1 ਤੇ ਇੱਥੇ -1 ਹੈ। दिस शुड बी क्लियर। ठीक है, बिकॉज कई बार हम बच्चे सोचते हैं 2 ले लो, 2 नहीं लो, गिवन तो सानू आ सीगा ना, ਇਹਦਾ मतलब आ तो इधर चाहिए ही है। सो आ चाहिए तो आ साडा ए हो गया, बी ते सी, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ -1, -1 ਕਿਉਂ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ देयरफॉर ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1/x² plus 1/y² plus 1/z² ਦੀ ਪਾਵਰ 3 is greater than equal to ਆ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਤਰ 1, 1/3 ਦਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ। देयरफॉर 1/x² plus 1/y² 1/z² is greater than equal to 9। सो देयरफॉर ਇਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 9 ਆ ਜਾਏਗੀ। ठीक है, लीस्ट पूछी सी मिनिमम वैल्यू, इक्वलिटी का तुसी कड्डो हुण। ठीक है, सो लेट्स कंक्लूड दैट विद फ्यू मोर प्रॉब्लम्स। ठीक है, वो कहना जी ABCD आर पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट दिस गिवन, मतलब सम ऑफ द नंबर्स। ठीक है, ई एक नवा ही पाता, ई दे बारे उन्हें चर्चा नहीं की थी। फिर कहना फाइंड द रेंज ऑफ ई। अच्छा लोग कहते ABCD 4 नंबर की गल करता है, तो अगर 4 नंबर ते और डाटा की दिता सानू A + B + C + D पता है। ठीक है, 8 - C ऐदा मैं क्यों लिखा, क्योंकि मैंने ई दे बारे पूछ रहा है, तो मैनू ये जो भी मैं लाऊंगा तो लाऊंगा, और मैनू आ भी गिवन है A² + B² + C² + D² इज इक्वल टू 16 - E²। सो पावर कितनी 2 2 2, तो शुरू करिए A² + B² + C² + D² दी बाय 4। ठीक है, बिकॉज नंबर ABCD है। ठीक है, सो इज ग्रेटर देन इक्वल टू A + B + C + D बाय 4 दी पावर कितनी सी इंडिविजुअल 2। दिस इज बाय mth मीन देना इनक्वालिटी लाती, तो हम एदी वैल्यू कितनी है, एदी वैल्यू है 16 - E²। सो साढ़े को ई च इनक्वालिटी आ गई ना, ई च इनक्वालिटी आ गई तो ई दी रेंज आ गई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ जी आ कितना आ गया 8 - E बाय 4 द स्क्वायर। दैट्स इट। सो इत्थों तुहाडे को ई दी रेंज आ जाएगी। ठीक है, सो लेट्स सी कितना आ गया 16 - E² बाय 4 इज स्मॉल ए स्क्वायर खोलना है मैं, A² + B² - 2AB बाय 4 स्क्वायर। ठीक है, और आ 4 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾएगा। ठीक है, सो हुण की करा 4 इधर मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, सो कितना हो गया 64 - 4E² इज
greater than equal to 64 plus e square minus 16e कट्टिया गया उधर ले जाओ 5e square 16e is less than equal to 0 आई गया इत्थों very simple inequality बन गई वेवी कर्व जिन्होंने कहते ना हाँ जी एक तो आ गया e 0 आ गया 16/5 पॉजिटिव नेगेटिव कितने इतने ठीक है फिर कितों आ जाएगा 0 तो लैके सो e belongs to 0 to 16/5 सो e का जो आंसर है वो अगर समझा नहीं गल बेटे इन्हें सॉल्व कर लिया e का आंसर हमेशा e की रेंज जी है वो 0 तो लैके 16/5 दे विच वही पूछा से ठीक है वैसे मैं पूछा कि कद होएगा इक्वलिटी कद होल्ड करेगी ठीक है मतलब 0 16/5 ते की होएगा वो भी तुसी लभ सकते हो तुसी वैल्यू पुट करके ना बट चलो आप जिन्ना क पुछे उत्ते रहिए फिलहाल तो आ रहे हैं जाके ਇਹਦਾ मतलब अगर आ नंबर ABCD पॉजिटिव ऐड कर दिओ ते नाल E भी कोई नंबर है तो E एदों बार-बार नहीं जा सकता ठीक है अगर इन्हां दोनों ਨੂੰ सैटिस्फाई करता तो आ ਜਿਹੜੀ AMGM ਦੀ mth पावर है ना ये ਤੁਹਾਨੂੰ हिंट लग जाता है क्वेश्चन च बट अगेन आई मस्ट बी वेरी क्लीयर बिकॉज ऑलमोस्ट मैं मुकाता है कि जी पहला AMGM ਸੀਗਾ मेन ਉਹਦੇ क्वेश्चन आए हैं फिलहाल तक ਉਹਦੇ ही आते हैं ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ कराया है दैट इज़ लाइक मोर ऑफ इन्फॉर्मेशन एडिशनल नॉलेज ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ है कोची याद रखो कोची का वरत्या जाता है कोची वाला याद रख लो आ थानू जस्ट कीप दैट थिंग इन माइंड ठीक है चलो बाकी नैक्सट क्लास करांगे पुत्तर